अब इसके आगे बड़े जिम्मेवारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो सम्मान और जो स्थान वंदे मातरम को मिलना चाहिए था, वह सम्मान और स्थान नहीं मिला और उस समय के देश के शासक उसके लिए जिम्मेवार थे। यह मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं आपको नेहरू आर्काइव्स 1937 से कुछ चीजें उद्धृत करना चाहता हूं। इन 1937 जवाहरलाल नेहरू expressed reservations about Vande Mataram, dismissing its interpretation as homage to Mother Goddess as, quote, absurd. In September 1937, a letter to Urdu writer Ali Sardar Jafri, he criticized the song's language, calling, quote, too many difficult words which people do not understand, unquote, and argued that its ideas were, quote, out of keeping with modern notions of nationalism and progress, unquote. जो हमारी मान्यता थी उसको उस समय के प्रधानमंत्री सिरे से खारिज कर रहे थे। ये इसका इतिहास बनता है। मैं सारी बात और ये सारे कागज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, सारे कागज में ऑथेंटिकेट करूंगा, सारे कागज बड़ा पोथा लेके आया हूं। कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बड़े नेहरू जी प्रधानमंत्री थे 1937 में। एक बैठ जाइए बता रहा हूँ, मैं समझ गया साहब। ये गोलवलकर गुरुजी का मंत्र यहाँ मत पढ़ो, खड़गे जी, टैगोर का पढ़ो। खड़गे जी मैं सब चीजों का जवाब दूंगा। 1937 में एक मिनट 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 1936-37 में जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी रुक जाओ भैया, सारे। दूसरा, in 1937 it was under the presidentship of Jawaharlal Nehru that under pressure from the communal elements they altered the sacred song, discarding stanzas that invoked Bharat Mata as the Ma Durga wielding weapons of freedom. अब इसी को सपोर्ट करने के लिए मैं कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी अक्टूबर 26 टू नवंबर 1, 1937 रेजोल्यूशन फॉर द AICC उसको उद्धृत करना चाहता हूं। उसमें यह बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है, लेकिन मैं उसमें से शब्द पढ़ रहा हूं। Gradually, the use of the first two stanzas of the song spread to other provinces, and certain national significance began to attach to them. The rest of the song was very seldom used, and is even not now known to few persons. There was absolutely nothing in them which objection could be taken from the religious or any other point of view. उसके आगे लिखते हैं, the other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. They contain allusions and religious ideology which may not be
in keeping with the ideology of other religious groups in India. The committee recognized the validity of the objection raised by Muslim friends to certain parts of the song. The committee recommended that wherever Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first two stanzas should be sung. सब पढ़ रहा हूं, मैं सब पढ़ रहा हूं। आप बैठ। Jairamji, please. You got it. Yesterday you have gone through. मैंने पढ़ा है And you have given all your speech. पूरा पढ़ा है। Please, let him express himself. पूरा पढ़ा है मैंने। सर, No. You please, you take your seat. Let us listen to him. Then we will look into it. Please take your seat. Please take your seat. Let him express himself. Then we will look into it. Nadaji, you continue. सर आओ, You please continue. आप बैठ जाएं। मैं ये सारे का सारा रेजोल्यूशन वंदे मातरम को 2 स्टैंजा में क्यों सीमित करना है, उसी पर सारा लिखा हुआ है। पूरा पढ़ा हूं सर, इनकी खुशी पूरी कर देता हूं। The song was never sung as a challenge to any community group. The Indians make it clear. अब मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ने भी नहीं देती मैडम। मेरे सीधेपन का इतना नाजायज फायदा मत उठाइए। You please let the debate continue as it is continuing. Nadaji, please read. The committee recommended wherever Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first 2 stanzas should be sung with perfect freedom to the organizers. देखिए freedom देते हैं, the perfect freedom to the organizers to sing any other song of an unobjectionable character in addition to it or in place of Vande Mataram song. So when he started reading the whole thing, his members are not allowing him. Let him read the whole thing then. Let him read the whole thing then. He is ready to read. Why you are worried? Please, Sir, all members, please बैठिए. Let Nadaji continue his speech, please. All बैठिए. सर, तो मैंने आपके सामने, और मैं इसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा, जयराम रमेश जी को जो बोलना होगा वो बता देंगे। Please बैठिए. Let him speak. Please. सभापति जी, मैं अब आपके सामने दूसरी बात रखना चाहता हूं और मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। जो भी आपको पूछना हो आप मेरे वक्तव्य के बाद पूछ लें और मैं सब कुछ ऑथेंटिकेट करूंगा। अब मैंने जब कहा, जो मैंने उद्धृत किया वह बताता है कि वंदे मातरम को उचित सम्मान और उचित स्थान न देने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। इसको हमको ध्यान रखना। मैं राष्ट्रीय एंथम, नेशनल एंथम जनगण मन की
पूरी मन से इज्जत करता हूं और उसके सम्मान में अपने जीवन को समर्पित करता हूं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी देर नेशनल एंथम पर चर्चा हुई, कितने समय नेशनल एंथम पर चर्चा हुई। नेशनल फ्लैग पर तो आपने कमेटी बैठाई, कमेटी में चर्चा हुई, कमेटी की रिपोर्ट आई, उस पर चर्चा हुई। लेकिन जब नेशनल एंथम की बारी आई तो आपने क्या किया? अब मैं फिर आपको उद्धृत करना चाहता हूं। सबसे पहले कि 24 जनवरी the decision to declare Jana Gana Mana as the national anthem was announced on the final day of the Constituent Assembly, January 24th, 1950, without any debate and discussion, on prior notice, simply through the statement of Dr. Rajendra Prasad. अब मैं सर ये I am not. No. Jairanji, don't disturb. You are already running late. You please take your seat. We are already running late. Sir, Jairamji, please take your seat. Take your seat. Don't interfere. Please. Anand Mutaji, please continue. इसके बाद लगभग 2 महीने। जी, you please continue. सर, इसके बाद Nothing will go on record except leader of the house speech. इसके बाद लगभग 2 महीने के बाद 24 जनवरी 1950 के दिन 11 बजे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के लिए बैठक हुई, तो बिना किसी बहस, बिना किसी चर्चा, बिना किसी नोटिस के एक वक्तव्य पढ़ दिया गया जिसमें भारत राष्ट्रगान का निर्णय सुना दिया गया। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। साथ ही यह कह दिया गया वंदे मातरम का सम्मान। Nothing should go on record except the leader of the वंदे house मातरम speech. का सम्मान भी जन गण मन के सम्मान ही किया जाएगा। यह निर्णय किस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप या लोकतांत्रिक निर्णय कहा जा सकता है, यह संविधान निवेताओं को निर्णय करने के लिए छोड़ा जाना चाहिए। मैं अब बहुत ही ज्वलंत, हाईली इन्फ्लेमेबल वक्तव्य उस समय का पढ़ रहा हूं। संविधान सभा में भारत के नेशनल एंथम के लिए जो हुआ और उसमें वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे। और उन्होंने यह साफ जिम्मेदारी जाहिर भी की। एक लिखित जवाब में जो भारत के संविधान सभा को दिया गया था, एक सदस्य ने भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल से यह जानना चाहा था कि भारत के नेशनल एंथम को लेकर क्या किया जा रहा है। सरदार पटेल को लिखी गई चिट्ठी का जवाब नेहरू जी ने 25 अगस्त 1948 को दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस चिट्ठी का जवाब वो स्वयं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस विषय पर सभी निर्णय वही ले रहे हैं।